Hello dear student, there are two chemical tests to perform the identification of functional group. First is the preliminary test, another is confirmatory test. Preliminary test जैसे कि हम बता चुके हैं बच्चों आपको, preliminary test based on order, physical appearance, solubility and burning, वहाँ से हम पता लगाएंगे. तो फर्स्ट इज द फिजिकल स्टेट की बात करेंगे बच्चों. फर्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट इज द फिजिकल स्टेट की बात करेंगे. कार्बोक्सिलिक एसिड, इफ अननोन सॉल्ट इज सॉलिड फॉर्म, देयर इज ओनली वन सॉलिड फॉर्म. इफ सॉलिड फॉर्म में कोई भी सॉल्ट मिलेगा देन 100% इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड फिनॉल इज ए, देखिए आप डार्क ब्राउन. फिनॉल फिजिकल स्टेट in both, it is also obtained in crystalline form. And aniline, it is a yellow. Then there are three colorless liquids: aldehyde, ketone and alcohol. These are the colorless liquid. यहाँ आएगी दिक्कत आपको. Now these are the 6 functional group based on physical state and appearance. First is a solid form and rest of 5 are liquid form. In liquid form there are 2 color liquids. First is the phenol, second one is aniline, rest of is colorless. Okay, this is the identification by physical state. यानी अगर आपको कोई भी ब्राउन लिक्विड मिल रहा है 100% फिनॉल है, फिनॉल के बारे में आप लिखना स्टार्ट कर दें. सिंपल सी बात. नाउ अनदर टेस्ट इज अ पंजेंट स्मेलिंग ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं. तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग ए विनेगर स्मेल, जस्ट लाइक ए सिरका जो होता है सलाद में डलता है, दैट इज ए विनेगर स्मेल. नाउ फिनॉल हैव ए फिनोलिक स्मेल. ये कहाँ मिलेगा आपको? घर में जो पोंछा लगता है, दैट इज ए फिनॉल. ओके. देन एल्डिहाइड हैव ए पंजेंट स्मेल. पंजेंट मतलब तीखी गंध होती है इसकी, सामने ले जाओगे बहुत तीखा चुभेगा, दैट इज ए एल्डिहाइड. And now acetone have a nail polish remover smell. nail polish remover नाम सुना हो आपने? या हम पेंट में जो डालते हैं, ठीक है, जो भी हम पेंट में तेल डालते हैं, that is also a acetone. Now fifth one is alcohol have a alcoholic smell. alcohol सब समझते हैं आप. aniline also have a pungent smell, but it is a yellow, so you can identify between the aldehyde and aniline. aldehyde is a colorless, aniline is what? Yellow. Okay dear student, this is the second preliminary test. Third one is solubility में बात करेंगे बच्चों. Now we add the water, distilled water to the test tube. On gentle stirring the test tube, you can see this is highly soluble in water. Why? Because of presence of कौन सी bonding? H bonding, जो कि हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं बच्चों. ठीक है. Now phenol have a 6 carbon atom. You know that phenol is sparingly soluble in water. That is why, because of presence of 6 carbon atom, hydrophobic nature increase, then solubility क्या होती है बच्चों? Decrease. ये आपको पढ़ा चुके हम. aldehyde is also soluble in water. You can see this, soluble in water. Why? Because of presence of dipole force of attraction, not H bonding. ये ध्यान रखेंगे आप, ये हम आपको थ्योरी में सब लिखा चुके हैं. These type of question can be asked in the viva. Okay. Acetone again it is insoluble in water. Why? Because of again weak dipole force of attraction and more hydrophobic nature of the 2 surrounding carbon atom. Now alcohol is highly soluble in water. जानते हैं आप तो, ठीक, हम सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं चैप्टर में. It is a homogeneous mixture. Why? Due to presence of H bonding. Okay dear students. Now aniline is also slightly soluble in water, sparingly soluble. Why? Because of 6 carbon atom. ये देखिए आप, सेपरेट लेयर बन रही है, यानी कि sparingly soluble, पूरा soluble नहीं है. Why? अच्छा ये अमीन होता, if it is aliphatic amine, then it is highly soluble in water. Why? Due to less hydrophobic nature. Fourth one is a litmus test. In litmus test, simple test, the acid changes the blue litmus into what? Red. You can see this is the blue litmus paper, and on putting in the acid, if it is acid, then confirm the presence of what? It changes into what? Red. You can see this.
समझ गए बच्चों? दिस इज द कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? एसिड. दिस इज द एसिड ग्रुप. OH group, COOH is a acid group. Now again phenol. Phenol also have a protonic H. It is also acidic in nature because of resonance. It forms a phenoxide ion. You can see this again. Blue litmus. Blue litmus changes into what? Again देखिए आप, very weak acid, slightly red. Weak acid. Therefore it is a what? Slightly red. It confirms the presence of acidic group. Now in aniline, as aniline is a basic group, we use the red litmus paper, but it is a weak base, तो slightly change होगा बच्चों, इसमें बहुत कम change होगा. इसमें देखिए आप, it also changes into blue, very light blue. You can see this. Okay. Now these are the colorless liquid. Alcohol, you can add any litmus paper. Alcohol, aldehyde, ketone. No changes because they are neutral, because do not have a protonic H group. ना प्रोटोनिक H ग्रुप नहीं है बच्चों इसमें, तो ना रेड का कोई फर्क पड़ना है ना ब्लू का फर्क पड़ना है. आप देख लीजिए इन ऑल 3 फंक्शन ग्रुप. तो 3 फंक्शन ग्रुप आर न्यूट्रल टुवर्ड द लिटमस. ओके. तो 2 आर द एसिड. one is the carboxylic acid, another is phenol, and third one is aniline. This is the basic. Rest of 3 are colorless, but these are neutral toward the what? Litmus. These are the preliminary test. Now we are going to perform the confirmatory test. तो confirmatory की जरूरत पड़ेगी नहीं बच्चों, बाकी हम confirm करने के लिए टीचर बोल दे तो करना भी पड़ेगा. तो कैसे करते हैं confirmatory test? Now we are going to perform the confirmatory test for identification of these function group. Okay dear students. अब बात करेंगे confirmatory test की. सबसे पहले बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम पढ़ चुके हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड पे हम डालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट देखिए आप, बहुत सिंपल. सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, इट लिबरेट द CO2. इट लिबरेट CO2 which turns lime water milky. You can see this just like a soda water. सोडा वाटर की तरह CO2 निकलेगा इसमें से गैस. अगर CO2 गैस को मैं पास करूंगा, इट टर्न्स लाइम वाटर व्हाट? मिल्की. दिस इज द कन्फर्मेटरी ऑफ व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस टेस्ट इज गिवन ओनली बाय कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों. बात करते हैं फिनॉल की. बहुत सिंपल. फिनॉल में हम डालेंगे न्यूट्रल FeCl3, जो हमने क्लास में भी लिखवाया था आपको. न्यूट्रल FeCl3 में देखेंगे आप, न्यूट्रल FeCl3 में हम डालेंगे, फिनॉल में डाला हमने न्यूट्रल FeCl3 फॉलोड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये देखेंगे आप, अब क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रल FeCl3 डालने पे वॉलेट PPT आता, तो देखेंगे आप वॉलेट PPT आ रहा नहीं आ रहा, तो बैगनी होना चाहिए ये. फॉलोड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये देखिए आप, बिल्कुल डार्क वॉलेट हो जाएगा, ये आपका डार्क वॉलेट रंग हो जाएगा. दिस इज द व्हाट? फिनॉल. दिस इज द कन्फर्मेटरी ऑफ व्हाट? फिनॉल. ठीक है, ये देखिए आप टेस्ट ट्यूब पर फिनॉल आ गया बिल्कुल. तो नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों एल्डिहाइड की. एल्डिहाइड इज कलरलेस पंजेंट स्पेलिंग गैस. बहुत सिंपल. एक होता है इसमें टॉलेंस टेस्ट, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग ए फेलिंग बी, एक होता है शिफ्ट रीजन टेस्ट. टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी वहाँ बनाना संभव नहीं होता बच्चों, नॉट पॉसिबल इन एग्जाम. अनदर फैक्टर इज उसको हीट करना पड़ेगा. हीटिंग आपको हर स्कूल में मिलेगा नहीं, तो हम सबसे बढ़िया टेस्ट मानते हैं शिफ्ट रीजन टेस्ट. देखेंगे आप, बहुत सिंपल. जैसे आप शिफ्ट रीजन डालेंगे, ये देखें आप, बहुत सिंपल. इट गिव्स अ पिंक PPT. पिंक कलर. पिंक कलर कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? क्या मिलेगा बच्चों आपको? एल्डिहाइड. तो सिंपल एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के लिए हमने कौन सा लगाया टेस्ट? शिफ्ट टेस्ट. शिफ्ट टेस्ट इज द बेस्ट टेस्ट टू आइडेंटिफाई द aldehyde. Any type of aldehyde, formaldehyde, acetaldehyde, all aldehyde gives shift region test. It gives a pink coloration. Okay बच्चों. Now we move to ketone, जो हमने आइडेंटिफाई करा था. कीटोन हैविंग ए नेल पॉलिश रिमूवर स्मेल. इसमें हम करेंगे सबसे बढ़िया टेस्ट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट. सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट करेंगे बच्चों. ये देखेंगे आप, रेड वाइन कलर आएगा. रेड वाइन कलर. सबसे पहले सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला हमने, फॉलोड बाय NOH. ये सब चीज़ें आपके सॉल्ट एनालिसिस में भी काम आने वाली है बच्चों, सब्जेक्टिव में भी काम आएगा. फॉलोड बाय NOH. जैसे हम NOH डालेंगे, देखेंगे आप, ये देखेंगे आप. नाउ ऑन शेकिंग देखिए आप, बिल्कुल रेड वाइन कलर आ गया आपका. दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ व्हाट?
कीटोन, दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ व्हाट बच्चों, कीटोन। ये देखिए आप रेड वाइन कलर, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, बहुत सिंपल सा टेस्ट। अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल में सबसे बढ़िया टेस्ट, हम एक सोडियम मेटल का पीस डालेंगे बच्चों, सोडियम मेटल का बिल्कुल छोटा सा पीस डालना, इट लिबरेट द हाइड्रोजन, C2H5OH प्लस Na, क्या मिलेगा, C2H5ONa, इट लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। ये देखिए आप, इट गिव्स द कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ये गैस आपको दिखेगी ऑन शेकिंग, ये देखिए आप, बिल्कुल आपको गैस लिबरेट होती दिखेगी बिल्कुल नीचे। इट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अल्कोहल। सोडियम टेस्ट सबसे बढ़िया टेस्ट फॉर अल्कोहल। इसमें एक टेस्ट और लगा सकते हो आप, एसिटिक एसिड, उसमें आपको फ्रूटी स्मेल आएगी, जैसे आप एसिड डालोगे तो इट गिव्स अ फ्रूटी स्मेल, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। नाउ बच्चों बात करते हैं एनिलीन की। एनिलीन के टेस्ट के लिए आपको हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाती है यहाँ पर। आप टेस्ट ट्यूब होल्डर लेंगे, पहले तो टेस्ट ट्यूब होल्डर में टेस्ट ट्यूब को लेंगे, डायरेक्ट मत लेना, ठीक है। नाउ वी ऐड स्मॉल पिंच ऑफ सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट डालेंगे बच्चों बाय यूजिंग ए स्पैचुला। ये देखिए आप, बहुत सिंपल, इसको बढ़िया सा आप शेक कर लें, बढ़िया सा, जितना अच्छा शेक करेंगे उतना अच्छा कलर आएगा इसमें, पूरा डिसॉल्व हो जाए ये बढ़िया। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट वी ऐड बीटा नेप्थॉल, इट फॉर्म्स अ डाई, डाई बनाएगा बच्चों ये बीटा नेप्थॉल, एसो डाई। कहाँ पढ़ते हैं हम, कपलिंग रिएक्शन में, बहुत सिंपल सी रिएक्शन जहाँ दो नाइट्रोजन जुड़ जाती है। अच्छा आप कभी भी HCl डायरेक्ट मत डालना, कई बच्चे करते हैं Na2 प्लस HCl डालते हैं, HCl डालते तो फ्यूम्स उड़ जाएगी, टेस्ट ट्यूब भी ब्लॉक हो जाएगी आपकी, फूट जाएगा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन। नाउ सब हो जाए उसके बाद बिल्कुल लिटिल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेट HCl डालेंगे आप। ऑन एडिशन ऑफ कंसनट्रेट HCl इट गिव्स अ ऑरेंज रेड PPT, ये देखेंगे आप, ये देखें आप, ठीक है बच्चों। तो ऑन एडिंग बीटा नेप्थॉल एंड HCl, ये देखिए बच्चों, शेक करते रहेंगे इसे, शेक करते करते आपका ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट कलर आ जाएगा, ऑरेंज, बिल्कुल जिसे हम बोलते हैं हनुमान जी की कामी, वो कलर आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ऑरेंज। दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एनिलीन। तो बच्चों हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए 6 सॉल्ट पढ़े, वन इज द प्रिलिमिनरी टेस्ट, अनदर इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में हमने आइडेंटिफाई कर लिया, 99% काम आपका वहीं हो जाएगा, 1% काम जो होता है वो कंफर्मेटरी से होता है। कंफर्मेटरी लिखने के लिए आएगा, किसके बाद क्या डालना है टीचर वाइवा में पूछ सकता है, वो इसलिए हमने सारे स्टेप बताया आपको, ठीक है ना। और कंफर्मेटरी लिखने के लिए होता है काम आपका आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल नाम ही क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन ग्रुप, वो आपका फर्स्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट से हो जाएगा। समझ गए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अब एलन के साथ तैयारी सक्सेस की।